السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیات نمبر 154 اور 155 کا ترجمہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین، آپ کو معلوم ہوگا کہ عربی زبان میں اگر کسی کو پکارنا ہو تو اس کا نام لے کر ہم یا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ مثلاً اگر کسی شخص کا نام اقبال ہو اور ہم اس سے ذرا دور کھڑے ہوں یا اس سے مخاطب ہوں تو ہم اس کو کہتے ہیں یا اقبال، اے اقبال۔ یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا نہیں کہا گیا، یا ایھا کہا گیا۔ تو یا اور یا ایھا میں یہ فرق ہے کہ ایسا لفظ یا ایسا اسم، ایسا نام جس کے ساتھ الف لام نہ لگا ہو تو پھر صرف یا استعمال ہوتا ہے۔ جیسے اگر نبی کہا جائے تو کہیں گے یا نبی، لیکن اگر ہم کہیں گے ان نبی تو پھر کہیں گے یا ایھا النبی۔ تو الف لام اگر کسی لفظ کے ساتھ لگا ہو، چاہے وہ واحد ہو یا وہ جمع ہو، اس کے ساتھ ایھا بھی لگاتے ہیں، یا ایھا۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا اور ایھا ملا کر لکھا گیا ہے، یا ایھا۔ جیسے میں نے کہا کہ اگلا لفظ جو ہے وہ اس کے ساتھ الف لام ہو تب یا ایھا استعمال ہوگا، اور وہ لفظ چاہے واحد ہو یا جمع ہو دونوں صورتوں میں یا ایھا ہی لگے گا اگر اس کے ساتھ الف لام ہے۔ یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی۔ تو یہاں پہ ہے یا ایھا الذین، ہے وہ لوگ جو، الذی کی جمع ہے الذین، آپ کو معلوم ہے، اور اس کا مطلب ہے الذی وہ جو، الذی وہ تمام لوگ جو، یا ایھا الذین اے وہ تمام لوگ ہو جو کہ آمنو ایمان لائے ہو۔ اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ لفظ آمنو جو ہے اگر اس میں میم کے اوپر زبر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ماضی میں ایمان لائے، اور اگر میم کے نیچے زیر ہو تو پھر ہوگا آمنو، پھر وہ فعل امر ہوگا، یعنی کہا جائے گا کہ ایمان لاؤ۔ آمنو کا مطلب ہے وہ ایمان لائے، آمنو ایمان لاؤ۔ آمنو حکم دیا جا رہا ہے ایمان لاؤ، آمنو کا مطلب ہے کہ ایمان لائے۔ یا ایھا الذین آمنو اے وہ تمام لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی اس میں مومنوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ مومنوں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، استعینو، استعینو جو ہے اس کا جو مادہ ہے وہ ہے یہ ہے الف عین الف نون۔ آنا، آنا کا مطلب ہوتا ہے مدد، اور استعینو مدد طلب کرنا۔ اگر کسی لفظ کے ساتھ سین تیل لگا ہو اور اس سے پہلے اگر وہ واحد ہو تو الف ہو، اور اگر نون ہو تو پھر جمع ہے، جیسے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ آپ نے سورہ فاتحہ میں پڑھا ہے کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ نستعین کا مطلب ہے ہم مدد مانگتے ہیں۔ استعین یعنی کسی بات کو طلب کرنا ہو تو اس کے پہلے سین پہ لگا دیتے ہیں، استعینو تم سب مدد مانگو، استعینو۔ اور یہاں پہ آپ دیکھیں کہ وہ جو الف کے بعد جو پہلا حرف تھا، یعنی دوسرا حرف میم،
उसके नीचे अगर जेर लगा देंगे तो आमिनू का मतलब होगा ईमान लाओ। उसी तरह यहाँ अगर सीन ते को हटा दिया जाए तो आइनू का मतलब है मदद करो। यहाँ एन के नीचे जेर आ गई है, जैसे वहाँ पे नींद के नीचे जेर आती तो मतलब होता ईमान लाओ। यहाँ पे इस्ताइनू, तुम सब मदद तलब करो। इसका आनत का मतलब होता है मदद तलब करना है। इसमें मिलता है नस्ताइन, हम मदद तलब करते हैं, हम मदद मांगते हैं। और मैंने पहले भी आपको बताया था कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मुतालिक अल्लाह ताला ने फरमाया फवैज़िस तस्का मूसा, जब मूसा ने पानी मांगा अपने कौम में, अपनी कौम के लिए। सका का मतलब होता है पानी पीना या पानी पिलाना, और इस तस्का का मतलब होता है पानी मांगना, तो सीन से लग साथ। ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, इस्ताईनु, मदद तलब करो, बिस सब्र, सब्र के साथ, सब्र से नहीं बल्कि सब्र के साथ। मदद तो अल्लाह से तलब करनी है, लेकिन सब्र इख्तियार करते हुए, सब्र के साथ। सब्र, बे का मतलब साथ, सब्र का मतलब सब्र। और सब्र का मतलब होता है इस्तकामत से, यानी जो आप काम कर रहे हैं उसके ऊपर इस्तकामत इख्तियार करें, ये है सब्र। वो जो आमतौर पर मशहूर है कि जी वो कोई मर्जियात करते हैं सब्र करो सब्र करो, सब्र ना भी करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन असल में सब्र का मतलब है अपने काम पर इस्तकामत इख्तियार करना, अपने अकीदे पर इस्तकामत इख्तियार करना, वो है सब्र। अल्लाह ताला फरमाता है कि ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, मदद तलब करो सब्र के साथ, यानी इस्तकामत के साथ, बस सलाती, और नमाज के साथ। यहाँ पे देखें सब्र की रे के नीचे जेर है, और सलात की ते के नीचे जेर है, इसलिए है कि ये बे आया है पहले, और बे हर की जर है। बिस सब्र व सलात, यानी अपने काम पर, अपने दीन पर इस्तकामत इख्तियार करें, और नमाज पढ़ें, व सलात। इन अल्लाह, इन्ना, यकीनन, अल्लाह, अल्लाह है, यकीनन अल्लाह है, मा साथ, अस्साबिरीन, सब्र करने वालों। तो ये होगा यकीनन अल्लाह है साथ सब्र करने वालों, यानी वो जो सब्र करते हैं, जो इस्तकामत इख्तियार करते हैं, जो घबरा कर अपना रास्ता तर्क नहीं कर देते, अल्लाह ताला उनके साथ है। यकीनन अल्लाह ताला उनके साथ। वला, और ना तकूलू, तुम कहो। मैंने आपको पहले भी चंद दफा बताया है कि जो फिर अमर है वो दो तरीके का होता है। या तो किसी काम के करने को कहा जाता है, या किसी काम के ना करने को कहा जाता है, मना किया जाता है। इसको अमर और नहीं कहते हैं। अमर व नहीं। अमर का मतलब होता है करो, नहीं का मतलब होता है मत करो। अरबी जुबान का ये कायदा है कि जब किसी काम के ना करने को कहा जाए तो उससे पहले ते लगा देते हैं। वला तफअलू, तुम ये मत करो। वला तकूलू, और तुम मत कहो। तकूलू, कूलू का मतलब होता है कहो, तकूलू मत कहो। कूलू कहो, तकूलू मत कहो। जैसे और जगह पे कुरान करीम में है कूनू, कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। लेकिन जब कहा जाए कि वैसे ना बनो तो फरमाया वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, सूरह हशर में है कि वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह, उनकी तरह मत हो जाना जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया। और कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ। तो अब ये बात आपको समझ आ गई, याद भी रहेगी इंशाअल्लाह ताला। अरबी जुबान में जब किसी काम के करने से मना किया जाए तो जिस काम से मना किया जा रहा है उस फेल से पहले ते लगा दी जाती है। वला तकूल, और मत कहो। ले मन, उसके लिए जो या उनको, ले का आपको पता है, ला या ले के लिए, मन जो के, उसके लिए या उसको जो के, युक्तलो,
जो कत्ल हुआ, फी सबीलिल्लाह है, जो कत्ल हुआ, ये युक्तलो असल में ये होना चाहिए, जो कत्ल हुआ, लेमन उसके लिए जो कत्ल हुआ, फी में सबीलिल्लाह, सबील रास्ते को कहते हैं। और कुरान करीम में इसके मुतरादिफात जो है, यानी इसके हम मानी लफ्ज हैं, एक है सिरात और एक है सबील। तो सिरात और सबील दोनों का मतलब है रास्ता, सिरात अल्लाह जीना। तो मत कहो उनको, वला तकूलू लेमन, लेमन उसके लिए जो के युक्तलो कत्ल हुआ, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में। अब अल्लाह जो है उसके नीचे भी जेर है, उसकी वजह यह है कि उससे पहले फी आ गया है, फी भी हर्फ जर है। तो इसमें दो हर्फ जर हैं, एक बे और एक फी। और इन दोनों की खासियत यह है कि अगले लफ्ज की आखिरी हर्फ के नीचे जेर डाल देते हैं। फी सबीलिल्लाह, रास्ते में अल्लाह के, अमवातुन कि वो मुर्दा है, बल्कि, ये भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले कि कुरान शरीफ में दो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, बल और बला। दोनों का फर्क ये है कि बल जो है वो पिछली बात की नफी के लिए आता है, यानी जो पहले बात बयान की गई है उसके बारे में कहा जाता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं है। और बला जो है वो अ, उसके असबात के लिए आता है, उसके अफर्मेटिव के लिए आता है। तो बल का मतलब होता है नहीं, बल्कि, वला तकूलू लिमन युक्तलो फी सबीलिल्लाह अमवात, और उसके लिए जो कि अल्लाह की राह में कत्ल हुआ, ये मत कहो कि वो अमवात है यानी मुर्दा है, बल्कि अहिया, जिंदा है। अमवात का जिद है अहिया, यानी वो मुर्दा नहीं है बल्कि वो जिंदा है, बल अहिया, बल्कि जिंदा कहा करो। ठीक है। वलाकिन, लेकिन, ला नहीं, तशकुरून, तुम शऊर रखते हो। तो ये इसके मोटे मोटे में कहा था, मैं एक दफा फिर आपको बता देता हूँ। या और या अय्युहा में फर्क ये है कि या ऐसे लफ्ज के साथ इस्तेमाल होता है जिसके साथ अलिफ लाम ना हो, और अगर अलिफ लाम हो तो फिर या अय्युहा इस्तेमाल होता है, कतई नजर इसके कि जो अगला लफ्ज है वो जमा है या वाहिद है। तो यहाँ पे चूंकि अलिफ लाम है, अल्लज़ीना है, ये आ गया या अय्युहल्लज़ीना, ऐ वो लोगो जो आमनो, ईमान लाए हो, यानी कि तुम मोमिन हो, इस्ताईनु, मदद तलब करो, तुम सब मदद तलब करो, इस्ताईनु, क्योंकि आमनु, अल्लज़ीना जमा है, आमनु जमा है, उसके लिए फिर फेल जो है वो भी जमा है, इस्ताईनु, तुम सब मदद मांगो, बिस सब्र, सब्र के साथ, बस सलाते, और सलात के साथ, यानी दुआएं करो, नमाजें पढ़ो, सब्र इख्तियार करो, और इस तरह अल्लाह से मदद मांगो। इन अल्लाह, यकीनन अल्लाह जो है, और ये एक जो है अल्लाह का लफ्ज के जो है उसके ऊपर जबर इसलिए कि इन्ना आया है उससे पहले। इन अल्लाह मा, साथ, अस्साबिरीन, सब्र करने वालों, जो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। ये नहीं कि आज कुछ और कल कुछ, बल्कि जिस चीज को सोच समझ कर इख्तियार करते हैं उसके ऊपर अ, मुदावमत इख्तियार करते हैं, हमेशा इख्तियार करते हैं, इस्तिकामत इख्तियार करते हैं। ऐसे लोगों के साथ अल्लाह है। ये नहीं कि आज एक चीज को माना और जरा सी मुश्किल आई तो उसको छोड़ दिया कि ठीक है मैं इसको छोड़ता हूँ, नहीं, बल्कि सब्र के साथ, इस्तिकामत के साथ उसके ऊपर डटे रहो, और साथ दुआ करो, साथ नमाज पढ़ो। वला तकूलो, ये मैंने बताया कि जो किसी काम से मना करना है, तो जिस काम से मना करना है उसके लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उससे पहले ते लगा दी, जैसे मैंने बताया, कोनो हो जाओ, तकूनो मत हो जाओ। तो वला तकूलो, और मत कहो, ले मन युक्तलो, उसके लिए जो कि कत्ल हुआ, फी में सबील, रास्ते, अल्लाह है, अल्लाह के, फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में जो कत्ल हुआ, अमवात, उसको ये मत कहो कि वो मुर्दा है, बल्कि अहिया, वो जिंदा है।
यानी उनको जिंदा कहा करो, मुर्दा ना कहा करो। बल अहयान, बल्कि अहयान कहा करो। वलाकिन, लेकिन, ला तशऊरून, तुम शऊर नहीं रखते, यानी उनकी जिंदगी का तुम्हें शऊर नहीं है कि वो किस तरह जिंदा है। तो ये अल्लाह ताला ने मौत और हयात का जो कॉन्सेप्ट कुरान मजीद में बयान किया है, वो सिर्फ जिस्मानी नहीं है बल्कि रूहानी है। बहुत से जिस्मानी जिंदा असल में मुर्दा होते हैं, और बहुत से जिस्मानी मुर्दा जो है वो जिंदा होते हैं, जो अल्लाह की राह में कत्ल होते हैं, अल्लाह की राह में जान देते हैं। ठीक है जी, तो इंशाअल्लाह ताला फिर बाकी की जो आयात है दोबारा पढ़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।